وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مانسون کی تیاریوں کے سلسلے میں سخت موقف اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 1 جون کو صورتحال کا جائزہ لے کر پیشگی ہدایات جاری کی تھی، لیکن 9 جون کی بارش کے دوران حکام مناسب رد عمل دینے میں ناکام رہے۔ شہر کے مرکزی علاقوں میں بلدی اور پولیس حکام کے درمیان ناقص تال میل کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حادثاتی مقامات اور ٹریفک جام کے زونز کے ڈیٹا کے مطابق کام کرنا ہوگا۔ محکمہ برقی شدید بارش کے لیے مکمل طور پر تیار رہے۔ فیلڈ سے غائب رہنے والے عہدیداروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ بارش کے دوران ٹریفک کے اعلیٰ عہدیداروں سے لے کر کانسٹیبل تک تمام کا سڑکوں پر موجود ہونا لازمی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو میں خود سڑکوں پر اتروں گا۔ بارش کے دوران شدید ٹریفک جام کی صورتحال میں جواب دہی طے کی جائے گی۔ انسانی غلطی کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے اتر پردیش کے ضلع بہرائچ سے اپنی پارٹی کے ریاستی صدر شوکت علی کی امیدواری کا اعلان کرتے ہوئے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ شوکت علی کو میٹرا اسمبلی حلقے سے امیدوار بنایا گیا ہے۔ اس موقع پر صدر مجلس نے سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ بہرائچ میں مجلس کا پرچم لہرانے سے لکھنؤ میں بیٹھے اکھلیش یادو کو مسلمانوں کے گھروں میں اپنے نقصان کا احساس ہونے لگا ہے۔ انہوں نے ٹی ایم سی کے بحران کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان میں سے ہر ایک نے سر جھکایا اور بی جے پی میں شامل ہو گئے۔ میں یو پی کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ مجلس کا ساتھ دیں۔ ہم مرنا پسند کریں گے لیکن آپ کی محبت اور اپنی غیرت کا سودا نہیں کریں گے۔ انہوں نے سوال کیا کہ جب ممتا بنرجی کے 20 ایم پی پارٹی چھوڑ گئے تو اکھلیش یادو خاموش کیوں رہے۔ انہوں نے عوام سے پوچھا کہ جن سماجوادی پارٹی لیڈروں کو آپ نے ووٹ دیا انہوں نے علاقے کی ترقی کے لیے کیا کیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ تمام سے ایک بات کی اجازت لے کر اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والے ودھان سبھا میں کیا میں شوکت علی کو یہاں سے آپ کا کینڈیڈیٹ گھوشت کروں؟ کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں شوکت علی کو کینڈیڈیٹ بناؤں؟ کیا میں اجازت ہے آپ کی؟ آپ پورا ساتھ دیں گے تو لگاؤ میرے ساتھ نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ آپ تمام گورنر شیو پرتاپ شکلا نے حیدرآباد میں سالہ جنگ میوزیم کی پلیٹینم جوبلی تقریب کا افتتاح کیا اور سالہ جنگ سوم کے یوم پیدائش کی تقریب میں شرکت کی۔ گورنر نے میوزیم کو عالمی تہذیبوں کے ملاپ کی ایک منفرد علامت اور ہندوستان کے امیر ورثے کا انمول خزانہ قرار دیا۔ انہوں نے میوزیم میں موجود عالمی نوادرات جیسے ویلڈ ریبیکا اور ایران، مصر، چین، جاپان، یورپ کے نایاب اشیاء کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ادارہ حیدرآباد کی ثقافتی ہم آہنگی کی روایت کو ظاہر کرتا ہے۔ گورنر نے میوزیم کو ایک جدید تعلیمی مرکز بنانے کے لیے ڈیجیٹائزیشن اور تحقیقی سرگرمیوں پر زور دیا، ساتھ ہی تجویز پیش کی کہ اس کی تاریخی اہمیت کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے ریاستی کابینہ کا ایک اجلاس سالہ جنگ میوزیم میں منعقد کیا جائے۔ کرنول اور نندیال اضلاع کے کئی حصوں میں ہفتے کی رات سے جاری مسلسل بارش کی وجہ سے ندی نالے ابل پڑے ہیں اور عام زندگی شدید طور پر متاثر ہوئی ہے۔ نچلے علاقوں میں پانی بھر گیا ہے، رہائشی علاقوں میں صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے اور دیہاتوں کے درمیان گاڑیوں کی آمد و رفت منقطع ہو گئی ہے۔ کئی مقامات پر سڑک کے اوپر سے پانی بہنے کی وجہ سے گاڑی سواروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ٹریفک معطل ہو گئی ہے۔ اکبر باغ علاقے میں اتوار کی رات 2 پڑوسی خاندانوں کے درمیان معمولی بات پر جھگڑا اس وقت بڑھ گیا جب دھونے کے بعد سکھانے کے لیے ڈالے گئے کپڑوں سے پانی ٹپکنے پر تکرار ہوئی۔ یہ تکرار دیکھتے ہی دیکھتے شدید ہاتھا پائی میں تبدیل ہو گئی۔ پولیس کے مطابق ایک خاندان کے ارکان نے دوسرے خاندان پر حملہ کر دیا، جس کے بعد علاقے میں کشیدگی پھیل گئی۔ پولیس نے اس سلسلے میں سیکورٹی میں اضافہ کر دیا اور کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ آج چادر گھاٹ پولیس اسٹیشن لمٹ میں اکبر پیٹ میں ایک ایشو ہوا جس کے اندر 2 نیبر کے بیچ میں جھگڑا ہوا۔ اس میں دونوں کے نام ہے دھرمیندر اینڈ سیکنڈ نیبر از ایمو۔
तो इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन हमें मिला, मॉर्निंग में इमू ने जो है वहाँ पे वॉश क्लोथ्स वहाँ पे ड्राई करने के लिए रखे थे, तो उसका जो पानी है वो धर्मेंद्र के घर में आ रहा था, तो उसकी वजह से दोनों फैमिली के बीच में झगड़ा हुआ। बाद में अगेन नाइट में दोनों के बीच में फिर से उसी इशू के बारे में फिर से झगड़ा हुआ। उस टाइम पे इमू और उसके फैमिली मेंबर्स की तरफ से धर्मेंद्र को मारा गया और उसके फैमिली को मारा गया, तो उसके बारे में कुछ लोग यहाँ पे जमा भी हुए थे। इसके अंदर पुलिस ने इमीडिएटली एक्शन लेते हुए जो धर्मेंद्र है उसकी तरफ से पिटीशन यहाँ पे लिया और उसके बारे में एफआईआर। हैदरा ने मानसून के सीजन के दौरान शहर में 24 घंटे 3 शिफ्टों में काम करने के लिए 60 अहदेदारों पर मुश्तमिल 20 बाइक टीमें तैनात की हैं। इन बाइक टीमों का इफ्तिताह गुज़िश्ता साल वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदरा पुलिस स्टेशन के क़याम के दौरान किया था। ये टीमें रस्सियों, हंगामी औजारों से लेस हैं ताकि शहर में किसी भी हंगामी सूरत हाल पर फौरी रद्द-ए-अमल दिया जा सके। ये बाइक टीमें सड़कों से गिरे हुए दरख्तों को हटाने, रास्तों की रुकावटों को दूर करने और पानी की निकासी के कामों को फौरी अंजाम देंगी। मंचरियाल टाउन के कॉलेज रोड पर एक गाय इत्तेफाकी तौर पर 200 फीट गहरे कुएं में गिर गई। मुकामी अफराद ने गाय को कुएं में गिरा हुआ देखकर फौरी तौर पर महकमे फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। फायर ब्रिगेड के अहदेदारों ने बल्दी स्टाफ की मदद से तकरीबन 4 घंटे की जद्दोजहद के बाद गाय को बाहिफाजत कुएं से बाहर निकाल लिया। मुकामी अवाम ने बर वक्त कार्रवाई करके गाय की जान बचाने पर फायर ब्रिगेड और बल्दी अमले के जज्बे की जबरदस्त सताइश की। Give your child the best of both worlds at MS Creative Kids. We blend excellence in academics with Islamic values like Sunnah and Akhlaq, nurturing every child to thrive here and hereafter. एक अदाकारा ने बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि फिल्मों में अच्छे मौके देने के बहाने उनका जिनसी इस्तेहसाल किया गया। अदाकारा ने कास्टिंग आर्टिस्ट प्रसाद पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने फिल्म में हीरोइन की सहेली का किरदार अदा करने का वादा किया और इसे एक प्रोड्यूसर के ऑफिस को ले गया। इसके बाद इसे कार में ले जाकर इसके साथ नाज़ेबा सलूक और जिनसी हरासानी की गई। बंजारा हिल्स पुलिस ने अदाकारा की शिकायत पर केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। सिंगरनी बाई बाटा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर कासीपेट माइन पर एक गेट मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें टीआरएस की सरबराह के कविता ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर अहदेदारों के साथ तफसीली तौर पर तबादले ख्याल किया। रियासती हुकूमत ने सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए एक शानदार कदम उठाते हुए 720 करोड़ रुपए की लागत से ब्रेकफास्ट और मिल्क की स्कीम शुरू कर दी है। इस स्कीम से प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं जमात तक के तकरीबन 29 लाख सरकारी स्कूलों के तलबा मुस्तफीद होंगे। मंगल, जुमेरात और हफ्ते को रागी फराहम की जाएगी। पीर, चाशुम्बा और जुमे को दूध फराहम किया जाएगा। नाश्ते के मेनू में डोसा, पूरी, बाजरा, जवार, इडली, पोंगल और बोंडा शामिल हैं। गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल्स के दोबारा खुलने पर हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने खैरताबाद के राजभवन गवर्नमेंट हाई स्कूल में इस स्कीम का इफ्तिताह किया। इस स्कीम का बुनियादी मकसद तलबा में ग़िज़ाइयत की कमी को दूर करना, स्कूल्स में हाजिरी और बच्चों की तवज्जो को बढ़ाना, स्कूल्स छोड़ने वाले बच्चों की शरह को कम करना है। पहले मरहले में हैदराबाद के 45 सरकारी स्कूलों के 12,437 तलबा इससे फ़ायदा उठाएंगे और इसे मन्ना ट्रस्ट के ताउन से नाफिज किया जाएगा। మార్నింగ్ కొంచెం లేట్గా బ్రేక్ఫాస్ట్ వల్ల స్కూల్కి రావడం లేట్ అవుతుంది. ఇంకా మమ్మీ వాళ్ళకు కూడా కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది మార్నింగ్ లేసి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడం. కానీ ఇప్పుడు కానీ స్కూల్లోనే బ్రేక్ఫాస్ట్ పెడుతున్నారు. సో మేము చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం. ఇంకా మా పేరెంట్స్ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ తెలంగాణ.
सैबराबाद पुलिस ने माधापुर में मुनशियात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। माधापुर पुलिस और एसओटी कुकटपल्ली ने चंद्रा नायक तांडा के MBS अपार्टमेंट में एक फ्लैट पर अचानक धावा करते हुए मुनशियात के रैकेट का पर्दाफाश किया और एक पेडलर तरुण तेजा को गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से 15 ग्राम मुनशियात जब्त की गई। साथ ही पुलिस के मुताबिक फ्लैट में 9 नौजवानों को मुनशियात का इस्तेमाल करते हुए हिरासत में लिया गया। जब्त शुदा माल की मालियत तकरीबन 43 लाख रुपए बताई गई है। वुमेन्स क्रिकेट से एक खुशाइंद खबर सामने आई है। श्रीलंका के खिलाफ होने वाली इंडिया अंडर 19 वनडे वुमेन्स सीरीज के लिए MACA की खिलाड़ी वी प्रतीशा का इंतखाब किया गया है। ये तेलंगाना के अवाम खासतौर पर लड़कियों के लिए क्रिकेट में दिलचस्पी के सिलसिले में बड़ी कामयाबी है। इस मौके पर एकेडमी के डायरेक्टर और बानी मीर मुस्तफ़ा अली और हेड कोच मीर वसीम अली ने इंतहाई खुशी का इजहार किया और लड़कियों की खेलों में हौसला अफजाई की। मुशीराबाद हल्के के MLA M गोपाल और BRS के यूथ लीडर जय सिम्हा ने इस कामयाबी पर प्रतीशा की हिम्मत अफजाई की और उसे मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। उन्होंने MACA की पूरी टीम को भी इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस यानी GRP के एक मुस्लिम कांस्टेबल मोहम्मद जमशेद ने योगी आदित्यनाथ की हुकूमत में मुबैना तौर पर बढ़ती हुई फिरकावाराना मुनाफिरत का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस से इस्तीफा दे दिया। बरेली के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेजे गए अपने इस्तीफा नामे में मोहम्मद जमशेद ने लिखा कि बढ़ती हुई फिरका परस्ती भाइयों को एक दूसरे का दुश्मन बना रही है, जिसकी वजह से वो अब इस माहौल में मुलाजमत जारी नहीं रख सकते। उन्होंने मजीद कहा कि अब वो इस नफरत के खिलाफ लड़ने के लिए सियासत में कदम रखने या समाज को जोड़ने के लिए मोहब्बत की दुकान खोलने का इरादा रखते हैं। स्कूल्स के दोबारा खुलने के साथ ही रंगारेड्डी जिले के ट्रांसपोर्ट हुकाम ने स्कूल बसों की बड़े पैमाने पर जांच शुरू कर दी है। इस मुहिम के दौरान बसों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट, फायर बुझाने वाले आलात, मेडिकल किट्स और ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए गए। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर हुकाम ने 6 स्कूल बसों को जब्त कर लिया। सिंगरनी कोयले के वर्कर्स के सिलसिले में एक अहम बयान सामने आया, जिसमें कहा गया कि हुकूमत डेवलपमेंट फंड के नाम पर सिंगरनी वर्कर्स को मिलने वाले मुनाफे के जायज हिस्से को कम करके उनके साथ धोखाधड़ी कर रही है। मजदूर कायदीन का कहना है कि मुलाजमीन के हक और उनके मुनाफे के हिस्से में किसी भी किस्म की कटौती को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ शदीद एहतजाज किया जाएगा। हिंदुस्तान के हवाबाजी के शोबे के लिए एक तारीखी लम्हा सामने आया, क्योंकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तिजारती परवाज़ों का आगाज कर दिया गया। ये सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं बल्कि खित्ते में बेहतर राब्ते, माशी तरक्की, सरमायाकारी, सयाहत और रोजगार के मौके के लिए एक बड़ा गेटवे है। यह हिंदुस्तान के बुनियादी ढांचे के सफर में एक बड़ा कदम है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।